Good morning, everyone. How are you all? Hope so that you all are fine at your houses. Stay at home, stay safe. So, we have completed our chapter number 20 in our previous video. So, now we are going to start with our chapter number 21, prejudice and discrimination and inequality. So, starting with the glossary portion, the first one is deconditioning. Deconditioning का मतलब क्या होता है? Unlearn a certain set of an adapted behavior. अगर आप कोई भी certain set का भी अगर आप कोई भी unlearned behavior को adapt करते हो that is known as a deconditioning. Preconvinced. Preconvinced means what happens that to form an conception or opinions from the forehand means to accept everything. It's like a forehand for accepting everything. डिसहार्मनी. डिसहार्मनी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डिसहार्मनी? दैट लैक ऑफ द एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट न होना या हार्मनी न होना. इग्नोरेंस. इग्नोरेंस मीन्स लैक ऑफ द नॉलेज और इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा नॉलेज या इन्फॉर्मेशन का न होना. कन्फ्लिक्ट्स. व्हाट डज द कन्फ्लिक्ट्स मीन? conflict means fights. Prevailing. What is the prevailing means? Existing at a particular time. किसी भी एक टाइम पर exist होना, वहाँ पर होना, that is known as the prevailing. Arrogance. What does the arrogance means? Arrogance means showing an offensive attitude of superiority. मतलब कि ऐसा दिखावा करना that I am something, सब मैं ऊपर हूँ, मुझसे बात करो, वो attitude दिखाना, that is known as an arrogance. Retard. Retard means, what does the retard means? Displayed development and progress. Delayed, not displayed, I am so sorry for that. Delayed development and progress. किसी भी चीज़ का अगर development या progress हो रहा है तो उसमें देर लगाना, that is known as a retard. Attitudinal. Attitudinal means relating to attitudes, the thing which is related to the attitude. Conditioning. Conditioning to mold or adapt behavior according to the prevailing culture means जो भी culture वहाँ का हो उस हिसाब से ढल जाना या उसी को अपना mold बना लेना, means to adapt everything which is happening surrounded to you in that prevailing culture. Inoculations. Vaccine to prevent diseases. मतलब क्या होता है कि आपको वैक्सीन लेना चाहिए बिकॉज ऑफ दैट डिजीज आपको वो ना हो, उसके लिए फॉर दैट रीज़न यू हैव टू टेक द वैक्सीनेशन. हायरार्चिकल. of the nature of an hierarchy which means arranged in the order of rank. मीन्स क्या होता है कि आपका जो हेरिटेज होता है, ठीक है, तो उस हिसाब से उस ऑर्डर में अरेंज करना, उस हिसाब से कौन से रैंक में आ रहा है, दैट वन. अनटचेबल. अनटचेबल मीन्स हम पहले के टाइम पर उसे अछूत कहते थे. द पीपल हु वर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द कास्टल लैडर और हेरिची एंड ट्रीटेड एज एन अनवर्दी. जो लोग लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे और हम ऐसा मानते थे कि दे हैव नो एबिलिटीज टू कम्पीट विद द अपर कास्ट पीपल, सो दे वर नोन एज एन अनटचेबल्स. Atrocities. Atrocities means cruel and violent acts. कैसे acts? Cruel and violent acts. Apartheid means discrimination on the color. Color के basis पर discrimination करना, ये काले हैं, ये गोरे हैं, like that, on that. Enshrined. Preserved in a form that ensures it will be protected and respected. Means किसी भी चीज़ को बचा के रखना in that form कि वो फिर उस चीज़ को हम long time तक preserve कर सकते हैं. We can give respect to them. Approach. Approach means a way of doing or thinking about something. मतलब किसी भी चीज़ को ऐसे करना या उस हिसाब से उसे सोचना. Fundamental rights. The essential freedom guaranteed by the Constitution of the India that are essential for an overall growth of a person and community. Fundamental rights मतलब कि this is a type of, आप कह सकते हो कि ये एक freedom मिल रहा है उन्हें जो इस Constitution के द्वारा guaranteed सबको मिल रहा है. It doesn't mean that it will be discriminate on any ways. तो वो सबको मिल रहा है यहाँ पर जो सबके लिए ज़रूरी है अपने personal growth और अपने community के लिए. So this is all about the glossary, and now we will start our chapter number 21, prejudice, discrimination and inequality. So let's move on. So here we are starting our chapter number 21, prejudice, discrimination and inequality.
तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे दैट व्हाट डज द प्रिजुडाइस मीन्स। वो जब हम आगे जाएंगे वी विल अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली कि व्हाट डज इट मीन्स, वो कैसे होता है और उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। व्हाट इज स्टीरियोटाइप्स, स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं और उस वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ते हैं वो भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव करना और उससे इनइक्वालिटी प्रॉब्लम होना। इनइक्वालिटी बहुत सारी जगहों पर प्रॉब्लम होता है दैट एवरीवन आर नॉट गेटिंग एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग, सब लोगों को एक जैसी समान परिस्थितियां नहीं मिलती है जिससे वो लोग अपना काम करवा सकते हैं। स्ट्राइविंग फॉर द इक्वालिटी, बहुत सारे लोग ऐसे ही ढूंढते हैं कि उन्हें अच्छे से मौका मिले करने के लिए। हियर इज अ न्यूज़ मेकर नेल्सन मंडेला जिसको नोबेल पीस प्राइज मिला था फॉर एंटी पैराथिन एक्टिविटीज एंड अ पॉलिटिकल लीडर फ्रॉम दी साउथ अफ्रीका, वो पॉलिटिकल लीडर भी थे साउथ अफ्रीका के। ही वॉज द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे वो। ही स्पेंड 27 years in the prison due to his protest against the policy of an apartheid system of an racial segments on the basis of the color। उन्होंने 27 years जेल में बिताए थे, प्रिजन में बिताए थे। क्यों? बिकॉज ही वॉन्टेड टू रिमूव द डिस्क्रिमिनेशन, racial discrimination, segregation of color। ये काला है, ये गोरे है, ये ऐसे है, वो जो कलर के बेस पर था ना उसे रिमूव करने के लिए नेल्सन मंडेला ने 27 years इन प्रिजन बिताए थे। उन्होंने टायरलेसली वर्क किया था अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज एंड डिमोलिश द सिस्टम आफ्टर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इन 1994। वो जैसे ही प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के 1994 में, ही हैव जस्ट रिमूव द डिस्क्रिमिनेशन और डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी फ्रॉम द South Africa, and it was really a great achievement that he has done such an amazing job. So now moving further, here are the social issues, means these are the issues which commonly the normal and common people faces at an each and every stage of their life। उनकी ज़िंदगी की हर जगह पर वो इसमें से किसी न किसी प्रॉब्लम को तो वो फेस करते ही है। वो कैसे फेस करते हैं और उसे कैसे हम दूर कर सकते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत अच्छे तरीके से मज़ा आएगा जानने के लिए। बहुत सारे लोग इससे रिलेट भी कर सकते हो आप। दिस सोशल इज़ एक्चुअली व्हाट, कि आप इस चीज़ों को अपनी रेगुलर लाइफ से कंपेयर कर सकते हो कि हाँ ऐसा हुआ था, ये हुआ था। तो अगर आपके साथ फ्यूचर में भी कभी ये हो तो उससे आप कैसे लड़ सकते हो, हाउ कैन यू टेक स्टेप्स, हाउ द गवर्नमेंट और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अवर इंडिया विल बी हेल्पफुल टू यू, वो आपको कैसे हेल्प करेगी रिगार्डिंग टू द एनी ऑफ योर प्रॉब्लम्स। सो दिस इज अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड इट इज इंटरेस्टिंग टू। So the common issues, or you can say the social issues, are stereotypes, discrimination and prejudice. Now what is prejudice? The biased or unreasoned opinion of feeling formed without examination of facts. How it can be cured, मतलब वो क्या हुआ, कैसे हुआ और उसे क्योर भी कैसे कर सकते हैं। बाय फ्रेमिंग न्यू लॉज, हम न्यू लॉज को फ्रेम कर सकते हैं, एजुकेशन को स्प्रेड कर सकते हैं, मीडिया को एफिशिएंटली यूज़ करके कर सकते हैं हम लोग। वी कैन ऑल्सो डू द डीकंडीशनिंग, सो देर आर मेनी वेज टू डू दैट। What are stereotypes? Stereotypes means कि what happens that a widely held, fixed and oversimplified image that we create of a group and try to fit all persons to that group into that image which is not true। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिक्स ही रखते हैं कि ये अगर है तो ये ऐसा ही कर सकते हैं, लेकिन सब लोग उसमें फिट भी नहीं होते हैं ना। लाइक बॉयज़ डोंट क्राई, लड़के कभी रोते नहीं हैं। This is a stereotypes, but this is not true. Boys can also cry. By crying, you can show that they are weak. जो रोता है वो weak होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। Boys can also cry. There is nothing to be wrong in that. लेकिन हम लोगों ने ऐसा बस मन में बिठा दिया है, लड़के कभी रोते नहीं है, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई लड़का रोता है तो उसकी मम्मी बोलता है क्या लड़कियों के जैसा रोने लग गया। दिस इज़ नॉट ट्रू, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल, डोंट टेक इट मीन्स डोंट डू दैट थिंग।
and how we can cure it by trying to understand and respect one another as well as to be sensitive towards each other. इसे हम कैसे चेंज कर सकते हैं? बाई चेंजिंग अवर माइंडसेट्स. हम अगर दूसरों को समझने की कोशिश करेंगे, अगर दूसरों को रिस्पेक्ट देने की कोशिश करेंगे, देन ऑब्वियसली इट विल बी रिमूव्ड फ्रॉम आवर कंट्री. Next one is discrimination, means differentiating between the peoples on the basis of caste. अगर हम लोगों को अलग करते हैं basis on the caste, creed, race, religion, gender without any regard from individual merit. वो उस इंसान में कितनी क्वालिटीज़ है वो हम नहीं देखेंगे, लेकिन वो ऐसा है, ये है, वो है, इसका जेंडर ये है, उस वजह से हम उसे नहीं करवाएंगे वो चीज़. दैट इज़ नोन एज अ डिस्क्रिमिनेशन. और उसे हम कैसे क्योर कर सकते हैं? बाय फ्रेमिंग पॉलिसीज टू प्रमोट इक्वालिटी. हम इक्वालिटी प्रमोट करने की पॉलिसीज रख सकते हैं. एंड ऑल्सो constitutional provisions and awareness. हमें अवेयर भी रहना पड़ेगा, and there should be constitutional provisions also. So here is a warm up exercise. Look at the following images. Do these images portray any bias? We will do this at the last of this chapter. First of all, let's complete the chapter. Prejudice. Prejudice means what? That based on a preconceived or unfavorable opinion formed about something or someone without examining of the fact is known as a prejudice. Means what happens that what we will do is that we will just pass unfavorable opinion. हम किसी के बारे में कुछ भी बोल देंगे, और वो अगर कुछ भी चीज़ हो, इट डजेंट मैटर कि यही चीज़ हो, उसे जाने बगैर हम उस पर वो यू कैन से कि वो चीज़ हम उसे बोल देंगे कि ये ऐसा है, वो वैसा है. दैट इज़ नोन एज ए प्रेजुडाइज. सच एन ओपिनियन इज़ नॉट बेस्ड ऑन एन रीज़न और एन एक्चुअल एक्सपीरियंस. और बहुत बार क्या होता है कि हमने खुद ने भी ये एक्सपीरियंस नहीं किया है, लेकिन हम ऐसे ही बातें सुनकर उस पर ये बात थोप देते हैं. अगर हम सुनते हैं कि ये ऐसा है, ये अच्छा नहीं है, अगर कोई भी लड़का या लड़की है, ये अच्छा नहीं है, या ही और शी इज़ नॉट गुड, तो हम वो जानेंगे नहीं, हम खुद का एक्सपीरियंस नहीं है, किसी ने बताया, देन वी विल जस्ट फॉरवर्ड दैट सेंटेंस कि हाँ ये ऐसा ही है, ये वैसा ही है. दैट इज़ नोन एज ए प्रेजुडाइज. Prejudice creates disharmony in the society and hampers the progress and the growth of our country. As a citizen of a land of the diversity, one should be aware of the causes of the prejudice. मतलब क्या होता है कि अगर prejudice होगे, then everywhere you will just get a negative vibes. Okay, there will be a disharmony in the society, and it will also somewhere or more than that, it will also what they will do that they will stop the progress or the growth of any individual or the country. And as a citizen of such a beautiful land, a diverse land, so we should be aware that what will be the causes of the prejudice. Prejudice means it can be of various causes. The basic cause of the prejudice are ignorance. When people form an opinion before having the evidence of its truth, and lack of sensitivity means ignorance. किसी चीज़ का कोई इंसान न पसंद आना, फिर उसका खुद का कोई ओपिनियन नहीं होता है, उनके पास कोई एविडेंस भी नहीं होता है, सच्चाई भी नहीं होती है, लेकिन वो ऐसे ही बोल देते हैं. इट इज़ ऑल्सो अबाउट द लैक ऑफ द सेंसिटिविटी. प्रिजुडाइज कैन ऑल्सो बी द रिजल्ट ऑफ द सोशल बायस. इट इज़ नॉट समथिंग यूनिवर्सल, समथिंग वी हैव इनहर्टेड और आर बॉर्न विथ. ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके साथ हमने जन्म लिया है या वो हमें खानदान से मिलती है. बट देन ऑल्सो वी डू एंड प्रिजुडाइज मैनी, और मतलब मोस्ट प्रोबेबली एवरीवन आर डूइंग दिस. Sometimes even family members can create prejudice and discriminate between daughters and sons. बहुत सारी ऐसी भी फैमिलीज हैं जो खुद के फैमिली के अंदर ही प्रिजुडाइज करते हैं. दे जस्ट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन बॉय एंड अ गर्ल, कि ये लड़का है ये कर सकता है, ये लड़की है नहीं कर सकते. जैसे कि पढ़ाई, पहले के टाइम पर तो ऐसे ही माना जाता था ना कि लड़का जो है वही पढ़ाई करने जाता था, लड़कियों को पढ़ने का हक नहीं था. So they are also discriminating between family members. Religious diversities can give rise to the prejudice. Sometimes differences within the same religion can also give reason to the prejudice. बहुत बार ये भी होता है कि ये हिंदू ऐसा करते हैं, ये वो करते हैं, मुस्लिम लोग ये करते हैं, वो करते हैं. तो it doesn't depends on the caste कि वो कौन से caste या religion का है. You just can't prejudice them on the basis of the religion which they are following. Okay, so you just can't do this thing.
डिफरेंस बिटवीन द मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ में रिजल्ट इन टू द प्रिजुडाइज। बहुत सारी मेजोरिटी कम्युनिटी होती है, मतलब कि बहुत बड़ी कम्युनिटी होती है, और जो छोटी कम्युनिटी होती है उन दोनों के बीच में भी प्रिजुडाइज होता है, वो भी नहीं होना चाहिए। सोशल डिस्टेंस, द गैप बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी, बैन्स ऑफ द एंट्री टू द रिलीजियस प्लेसेस एंड अदर टाइप्स ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑल्सो लीड्स टू द प्रिजुडाइज। प्रिजुडाइज इससे भी होता है कि बहुत सारी चीज़ें के बीच में गैप आ गया होता है, जैसे कि कोई बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस पे बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं। सो दैट इज ऑल्सो अ रीजन ऑफ प्रिजुडाइज। एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द प्रिजुडाइज? प्रिजुडाइज होने से क्या हो सकता है? प्रिजुडाइज कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अवर सोसाइटी, वो हमारे सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। प्रिजुडाइज लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट, वो झगड़ा करवाता है। प्रिजुडाइज मतलब अगर झगड़ा करने के लिए ना एक छोटा सा तिनका ही चाहिए आग लगाने के लिए, ये प्रिजुडाइज है ना, वो एक आग लगाने का एक तिनका है जिससे ना बहुत बड़ी आग लग सकती है। ये जो झगड़े होते हैं ना कम्युनिटी के बीच में, द मेन एंड द मोस्ट पॉपुलर झगड़ा इज बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। सो दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रिजुडाइज। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी एक मेजर थ्रेट होना चाहिए टू द पीस विद इन अ नेशन एंड अमॉन्ग द नेशन। वी शुड ट्राई, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पीस को रख सकें। हमारे यहाँ पर हम वी कैन कीप दी दैट बॉन्डिंग बिटवीन द टू वंस। Prejudice can strengthen mistrust, suspicion and bitterness already prevailing in the society. अब प्रिजुडाइज क्या करेगा? वो जो मिसट्रस्ट हो रहा था, बहुत बार मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी फाइट हो सकती है, मैं राइट? तो वो जो मिसट्रस्ट है उसे वो और स्ट्रॉन्ग करेगा। सस्पिशन मतलब किसी पर कोई भी डाउट हो तो वो भी स्ट्रॉन्ग करेगा। जो बिटरनेस, उसके अंदर जो नफरत भरी हुई है वो भी ज़्यादा ही ज़्यादा बढ़ाता जाएगा। सो दिस इज़ हाउ द प्रिजुडाइज इज़। और यहाँ पर हमें कितना अच्छा इमेज दिया गया है। आई रियली लव दिस इमेज दैट द एग्स आर बीन पेंटेड एंड दे आर showing that how the prejudice they are, means all this happens because of the prejudice. Mistrust hona, doubts karna, bitterness, nafrat hona, this is all happening in our society. Prejudice can be led to and racial arrogance. This widens the gap among the different groups and races in the world. बहुत बड़ा prejudice है, वो गैप को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रॉड करता जाता है। उसे कम करने की जगह दो चीज़ों के बीच में, दो नेशंस के बीच में, दो कम्युनिटी के बीच में या टू पर्सनस के बीच में वो गैप बढ़ाता है। इट वॉन्ट fill it up, it will just increase it out. Prejudice leads to the disunity and disharmony in society through strifes and wars. फिर बहुत बार तो प्रिजुडाइज इतनी ज़्यादा हद तक बढ़ जाता है दैट इट विल कन्वर्ट इनटू अ वॉर। दिस शोज दैट हाउ much we are disunited, so this should not happen ever. As a stumbling block of an unity and integration, prejudice can retard the progress of the nation. अगर आपको एक strong very united nation की तरह stand करना है, then there should be no prejudice in your nation, because this will obviously delay your development and progress. आपके nation का development को वो delay करेगा, वो backward ले जाएगा। स्टेप्स नेसेसरी टू रिड्यूस प्रिजुडाइज। प्रिजुडाइज को रिड्यूस करने के कौन कौन से स्टेप्स हैं? द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन बाय द इंडिविजुअल एंड द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द प्रिजुडाइज। Frame new laws that are stricter and effectively implement the existing laws against the atrocities committed towards the backward sections of the society. हमें नए लॉज को फॉर्म करना चाहिए और वो भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट और ज़्यादा इफेक्टिव काम के होने चाहिए, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग लॉज है अगर उसमें भी आपको दिक्कत हो रही है then there should be a new laws which will be formed and which will always be supported towards the backward sections of the society. Spread education among the masses, including adult education. Education help to create open-mindedness and promote a healthy environment. अगर education सबके पास होगा, if you have noticed, जो educated people होते हैं, they are not the part of the prejudice, discrimination, stereotypes. वो इन सब के part नहीं होते हैं, because they know that what is right and wrong, क्या सही है और क्या गलत है। तो इस वजह से prejudice जो है उसे stop करने का ये best way, according to me, is to spread the education. ज़्यादा से ज़्यादा लोग जितने एजुकेटेड होंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होगा और आपको हेल्दी एनवायरनमेंट भी मिलेगा। Use the media to create an environment of goodwill and mutual appreciation and promote tolerance and harmony in the society. आप अभी सोशल मीडिया पर, यू आर रियली वेरी एक्टिव इन सोशल मीडियाज नाउअडेज, तो आप उससे भी एक अच्छा सा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो अपने सराउंडिंग। यू शुड बी हैविंग म्यूचुअल एप्रिसिएशन एंड प्रमोटिंग द टॉलरेंस एंड हार्मनी इन दिस सोसाइटी।
Take the special steps for the upliftment of the backward classes in order to remove mistrust and rebuild the feeling of the security. हमें स्पेशल स्टेप्स लेने पड़ेंगे हमारे बैकवर्ड क्लास को अपलिफ्ट करने के लिए, सो दैट वी ऑलवेज स्टैंड इन द सेम प्लेटफॉर्म, एंड ऑल्सो फॉर रिमूविंग द मिस्ट्रस्ट. जो उन लोगों में जो ये फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी आ गई है, जो इंटरेस्ट आ चुका है, वी हैव टू ट्राई टू रिमूव दिस एंड वी शुड रीबिल्ड अवर ट्रस्ट. देयर शुड बी द ओनली वन नेशन, only one state or only one group that will be united. Conditioning is one reason that promotes prejudice. Deconditioning should be undertaken by the Ministry of the Information and Broadcasting by employing popular public figures such as sportsperson to encourage and develop an open-minded approach, challenge age-old beliefs and bring out the attitudinal changes. So this is very important lines which you will be reading, and this is really very good ones. Conditioning वो भी एक रीज़न है जो कि प्रेजुडाइज को प्रमोट करता है, मीन्स कि अपने बिहेवियर में चेंज लाना. डीकंडीशनिंग जो है वो हमें इट शुड बी अंडरटेकन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द इंफॉर्मेशन. दैट यू शुड, ऐसा होता है ना कि हम चेंज नहीं होंगे, हम क्यों भला चेंज हो. दिस थिंग शुड नॉट हैपन इन दैट. मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग वो भी डीकंडीशनिंग कर सकते हैं, मींस कि अगर हमें नहीं सीखना है, नहीं करना है, वो जो है वो नहीं होना चाहिए. और हम लोग बहुत सारे जो पॉपुलर हमारे जो फिल्म स्टार्स हैं, हम उन्हें भी वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू दे कैन ऑल्सो एनकरेज द पीपल फॉर द ओपन माइंड अप्रोच, और उनके जो पुराने बिलीव्स हैं हम उसे भी चेंज कर सकते हैं. अ सक्सेसफुल एग्जाम्पल इज दैट द पल्स पोलियो ड्राइव बाय द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया, फॉर विच द एडवर्टाइजमेंट फीचर्ड respected personalities such as Sachin Tendulkar and Amitabh Bachchan. When these popular personalities urged inoculations of the children against polio, people turned up in a large number. जबकि हमारे जो फेमस फिल्म स्टार्स हैं लाइक अमिताभ बच्चन एंड द फेमस स्पोर्ट्स पर्सन्स लाइक सचिन तेंदुलकर, उन्होंने जब एडवर्टाइजमेंट की थी रिगार्डिंग टू दी पोलियो कि आप लोगों को पोलियो लेना ज़रूरी है, और ये बेस्ट एग्जांपल है हमारा कि इंडिया में हम लोगों ने उसे टोटली रिमूव कर दिया. बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने पोलियो की वैक्सीनेशन भी ली थी, पोलियो का वो भी किया था. सो इससे वो बहुत ही अच्छा, वी गॉट एंड वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स इन दैट. नेक्स्ट वन इज स्टीरियोटाइप. जैसे हमने डिस्कस किया, ये जो था पूरा वो प्रेजुडाइज का था. प्रेजुडाइज को क्या होता है, प्रेजुडाइज कैसे होता है, उससे क्या इम्फेक्ट्स होते हैं, और कौन कौन से स्टेप्स हैं जो प्रेजुडाइज को रिड्यूस करने में हेल्पफुल करते हैं. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम और द नेक्स्ट इशू विच इज स्टीरियोटाइप. वन ऑफ द सीरियस प्रॉब्लम कॉज्ड बाय द प्रेजुडाइज इज द क्रिएशन ऑफ द स्टीरियोटाइप्स. प्रेजुडाइज से कॉज होने वाला है स्टीरियोटाइप्स, बिकॉज व्हेन वी फिट ऑल पर्सन्स इन एन पर्टिकुलर ग्रुप into an one fixed oversimplified image, we create a stereotypes. जब हम सब लोगों को एक साथ एक ही ग्रुप में फिक्स करने की कोशिश करते हैं, एक ही इमेज में हम सबको उसे डालने की कोशिश करते हैं, जो सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है, तब हम स्टीरियोटाइप को क्रिएट करते हैं. स्टीरियोटाइप्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. स्टीरियोटाइप्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं. हाउएवर मोस्ट स्टीरियोटाइप्स मेक अस फील सुपीरियर टू द स्टीरियोटाइप्ड पर्सन्स और द ग्रुप. जो भी स्टीरियोटाइप हो उसमें जो सामने वाला होता है वो ज़्यादा सुपीरियर दिखता है. लाइक बॉयज़ डोंट क्राई. सो इसका मतलब ये होगा, अगर जो लड़का रो रहा है उससे जो लड़के नहीं रोते वो सुपीरियर माने जाते हैं कि वो देख, वो थोड़ी ना रो रहा है तो तुम क्यों रो रहे हो. सो इन दिस वे जिस पर्सन पर वो बीत रहा है वो खुद को लोअर फील करता है. यू मस्ट हैव हर्ड पीपल से द फॉलोइंग. लोग ऐसा बोलते हैं, गर्ल्स आर नॉट गुड एट मैथमेटिक्स और फिक्सिंग थिंग्स. लड़कियां जो होती है ना वो मैथ्स में अच्छी नहीं होती और सारी चीज़ों को वो संभाल नहीं सकती है. और बॉयज़ डोंट क्राई, लड़के नहीं रोते. और बॉयज़ आर नॉटी, गर्ल्स आर जेंटल. लड़के बहुत ही ज़्यादा शैतान होते हैं और लड़कियां बहुत ही ज़्यादा मासूम प्यारी होती है. ये जो सारे हैं ना, ये सारे स्टीरियोटाइप्स है. ये सब में से कुछ भी सच नहीं होता. ये डिपेंड करता है कि वो इंडिविजुअल कैसा है. ये सारी चीज़ें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. ये सारी चीज़ें बता नहीं सकती है कि सारे लड़के नॉटी होते हैं. नॉट ऑल बॉयज़ आर. बहुत सारे होते भी हैं और बहुत सारे नहीं भी होते. इसलिए आप सब बॉयज़ को एक ही कैटेगरी में नहीं डाल सकते हो. दिस इज़ नॉट एट ऑल ट्रू.
दिस आर नाइदर ट्रू फॉर ऑल दी बॉयज़ और फॉर ऑल दी गर्ल्स। सारी गर्ल्स भी ऐसी नहीं होती है, बट रॉन्गली फिटिंग लार्ज नंबर्स ऑफ द पीपल इनटू द वन इमेज। हम क्या कोशिश करते हैं कि सबको उसमें कर देते हैं। सारी गर्ल्स मैथ्स में अच्छी नहीं होते, दिस इज नॉट ट्रू। बहुत सारी अच्छी होती है और बहुत सारी अच्छी भी नहीं होती है। सो वी कांट से दैट ऑल गर्ल्स आर सेम। हम सबको एक इमेज में फिट नहीं कर सकते। इट्स नॉट बीन पॉसिबल फॉर अस टू डू दैट। सच स्टीरियोटाइप्स डू नॉट रिकॉग्नाइज दैट ईच इंडिविजुअल इज एन यूनिक एंड हैज स्पेशल क्वालिटीज। ये स्टीरियोटाइप होने की वजह से ये प्रूव नहीं कर एक्चुअली व्हाट इज कि सारे इंडिविजुअल यूनिक होते हैं, सब में कुछ ना कुछ अलग अलग स्पेशलिटीज होती है और सब में कुछ स्पेशल क्वालिटीज भी होती है। सो नॉट एवरीवन आर सेम। Sometimes stereotypes are created about those who belong to a particular region, religion, race और economical background। बहुत बार stereotypes जो होते हैं वो कौन से religion को belong करते हैं, कौन सा region है जहाँ पर आप रहते हो, कौन सा आपका economical background है, उस हिसाब पर भी stereotype depend करते हैं। जैसे कि people with physical disabilities are incapable। जो जिनको कोई भी physical disabilities होती है, जैसे कि किसी के पैर में कोई दिक्कत है, हाथों में दिक्कत है, कोई ब्लाइंड है, कोई डेफ है, कोई डम है, देर आर मैनी प्रॉब्लम्स। ओके, तो वो डिसेबिलिटीज़ वाले वो इनकैपेबल होते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दे आर हैविंग इनफैक्ट द मोर द अर्ज टू डू समथिंग रेदर देन अ नॉर्मल पर्सन। दे आर रियली वेरी कैपेबल। इफ दे आर नॉट हैविंग एनी वन ऑर्गन इन देयर बॉडी, दैट डजंट मीन अगर उनके पास कोई एक अपनी बॉडी का हिस्सा नहीं है, उसका मतलब ये नहीं होता कि उसमें कोई कैपेबिलिटी नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकते, वो ऐसे है वैसे है। नो, नेवर। आपको भी कभी भी किसी भी डिसेबल्ड इंसान का कभी भी आपको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। पीपल ऑफ एन पर्टिकुलर कास्ट और सेक्स आर माइसेस। मतलब कि कोई भी पर्टिकुलर कास्ट का है, कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करता है तो वो ऐसा है वैसा है। नो, नेवर यू शुड से। वी शुड रिस्पेक्ट ईच कास्ट, ईच रिलीजन। हमें सारे कास्ट और सारे रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए। Such stereotypes hurt the feelings of the others and can result in a misunderstanding and conflicts between various communities and groups। और इसी stereotypes की वजह से बहुत सारे लोगों की feelings को hurt होता है, बहुत सारी misunderstandings create होती है, बहुत सारे झगड़े होते हैं दो communities के बीच में, groups के बीच में। यहाँ पर हमें एक image दिखाया गया है कि एक disabled child है और बाकी के 3 जो उसके friends हैं वो उनका मजाक उड़ा रहे हैं। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। You should never ever make fun of the people who are मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड। उनका हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ओके, सो टुडे वी विल स्टॉप ओवर हियर एट द स्टीरियोटाइप। नेक्स्ट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल हैव अ लुक ओवर द डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी। आई थिंक देयर इज ओनली वन पैरा, सो वी शुड कंप्लीट इट। आफ्टर दैट इन नेक्स्ट video we will do about discrimination and inequality. It is important to remember that all individual and social groups have different ways of doing the same things. We must try to understand and respect one another as well as be sensitive towards each other. ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी चाहिए कि सब लोग या जो भी इंसान है उन लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं किसी भी काम को करने के। तो आप लोग उसे फोर्स नहीं कर सकते। You can't force them to do the one। हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो जिस भी तरीके से करते हो हमें उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। एंड वी शुड ऑल्सो बी सेंसिटिव टुवर्ड्स ईच अदर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।